प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल सफारी खाते અત્યારે પહોંચી ચૂક્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો કાફલો અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે જંગલ સફારી પાર્ક, જ્યાંનું લોકાર્પણ આજે કરવાના છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। વિવિધ કાર્યક્રમો, સૌથી પહેલા ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્ક સહિતના જે લોકાર્પણ કાર્યો હતા તે કર્યા અને ત્યારબાદ હવે તેઓ જંગલ સફારી ખાતે પહોંચ્યા છે। વિવિધ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેની સાથે જંગલ સફારીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે। 17 જેટલા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને 4 પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ આજે કરવાના પ્રધાનમંત્રી। સાંજે 7 કલાકે ડાયનામિક ડેમ લાઇટિંગનું ઉદ્ઘાટન કરશે, પણ તે પહેલા તેઓ અત્યારે જંગલ સફારી ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। જંગલ સફારી પાર્કને ખુલ્લો મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જેનું લોકાર્પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, જે પહોંચી ચૂક્યા છે, અત્યારે નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે। કેવડિયાની આસપાસના જે વિસ્તારો છે તેનું નિરીક્ષણ અને આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ, જેમાં પ્રધાનમંત્રીની હાજરી, તેમણે જંગલ સફારી પાર્કને ખુલ્લો મૂક્યો। ગુજરાતમાં વિવિધ વિકાસના કાર્યો, complex and part of the theme park here, and one of the important aspects of this jungle safari is that this land would have otherwise been wasteland, and it was in fact one of the dumping yards of the steel and other metals that were being used in the building of the Narmada Dam, and it has been transformed and now it's been made a place which is habitable, a place of habitation for 186 species of fauna and several birds as well from different parts of the world, and quite an experience then for anybody who wants to go in there, because you see these in their natural habitats, and the jungle safari has also tried to preserve those habitats and the temperatures so that these animals are comfortable in that environment. प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान यानी जंगल सफारी राष्ट्र को समर्पित किया और अब वो जंगल सफारी की सैर पर निकले हैं। विंध्य की पहाड़ियों पर ये जंगल सफारी अपने आप में कई रोचकता को समेटे हुए है। कुल मिलाकर अगर इसकी बात करें तो इसमें 29 बाड़ा हैं, जिनमें पशु पक्षी हैं। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है, और हमेशा से ही प्रधानमंत्री की सोच रही है पर्यावरण के संरक्षण की, और पशु पक्षी जो हैं वो हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। ऐसे में इस तरह की पहल से जहाँ एक तरफ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर लोगों में जन जागरूकता भी इस जंगल सफारी में, जो कि केवड़िया टूरिस्ट परिसर को एक अनोखा स्वरूप प्रदान कर रहा है। Another key feature of the jungle safari is that this is an area which has been landscaped, and it was otherwise चुके हैं। अपने आप में कई रोचकता को समेटे ये जंगल सफारी को काफी अनूठे ढंग से डिजाइन किया गया है। हर जीव जंतु के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई है, उनको भोजन की उचित व्यवस्था की गई है, और ज्यादातर पशुओं के लिए जो चारा है वो यहीं पे उपजाए जाने की भी व्यवस्था है। जो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करते हैं, न्यू इंडिया के निर्माण की बात करते हैं, तो इस जंगल सफारी के माध्यम से बहुतों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, और केवड़िया के आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो इस जंगल सफारी से जुड़े हैं। और जब भी आप जंगल सफारी की सैर पर जाते हैं और धूप थोड़ी कम हो जाती है तो घूमने का जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। इस समय केवड़िया के इस जंगल सफारी में भी यही है। धीरे धीरे सूरज
मध्यम होता हुआ और प्रधानमंत्री इसके अलग अलग आयामों को नजदीक से देखते हुए। So the Prime Minister has seen the carnivores, then he's gone to the aviaries, and now probably he's heading towards the herbivores, where we're going to see, the deer, the black bucks, different spotted deer, samba. That's my presumption because that looks like the route. जंगल सफारी जहां अब धीरे धीरे दिन ढलने की ओर चल पड़ा है, और जैसा हम सब जानते हैं कि दिन ढलने का समय होता है जब पंछी अपने अपने आशियाने को लौटने लगते हैं, और यहाँ जंगल सफारी में तो इनका घर है। We can now see the undulating roads that are going upwards. You were talking about the 7 levels that this place has been landscaped in. जी 29 मीटर से 180 मीटर के बीच में यहाँ ये जो 7 स्तर हैं, लेवल्स हैं, तो काफ़ी फ़र्क है 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक। इसको बहुत विशाल विस्तृत क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। 375 एकड़ का ये इलाका, और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात जो हर जगह के बारे में सभी नोटिस कर रहे हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल। तो आधुनिकता के साथ प्रकृति की, पर्यावरण की, जीव जंतुओं की, उनकी एक एक बारीकी को समझकर और किस तरह से उसको पर्यटकों के लिए, और यहाँ पर अगर जंगल सफारी की बात करें तो जीव जंतुओं के लिए भी वो किस प्रकार से उसका फायदा पहुंच सकता है, उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। So part of the preservation of zoos and animals is the exchange of animals from different zoos. So that also does take place, and now that there is the jungle safari here in તો જંગલ સફારી પાર્કનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। તમામ જે પ્રોજેક્ટ્સ છે તેનું એક બાદ એક લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ રેકોર્ડ સમયમાં ઝડપથી પાર્કની કામગીરી પૂર્ણ થઈ। 375 એકરમાં 7 જુદી જુદી સપાટીએ આ પાર્ક બનાવાયું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ ખૂબ જ उत्साहपूर्वक एक प्रोजेक्ट में झीणवट भर्યું निरीक्षण करता नजरे पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी बांदरी वतन आव्या छे અને ગુજરાતના 2 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન ઘણા એવા પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ તેમના હસ્તે કરવામાં આવનાર છે, અને આજે તેના ભાગરૂપે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। જંગલ સફારી પાર્કની મુલાકાત તેમણે લીધી અને તે દરમિયાન તેમણે પશુ પક્ષીઓ સાથે પણ જાણે સમય વિતાવ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો આપે જોયા। એ પરિદ્રશ્યો જ ફલિત કરે છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદી પર્યાવરણ સંરક્ષણનો જે મુદ્દો છે તેને લઈને પણ સજાગ છે, અને જ્યારે વિશ્વભરમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પ્રાણી સુરક્ષાને લઈને વાતો થતી હોય ત્યારે બંનેનું સામંજસ્ય જોવા મળી રહ્યું છે। જંગલ સફારી પાર્કમાં વિભિન્ન પ્રજાતિઓ પ્રાણીઓની, પક્ષીઓની અવનવા પક્ષીઓ જોવા મળ્યા, અને પ્રધાનમંત્રીએ પણ જાણે પર્યાવરણની ગોદમાં સમય વ્યતીત કર્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। દર વખતે પર્યાવરણ સુરક્ષાને લઈને ઘણી બધી વાતો કરવામાં આવતી હોય છે, અને ત્યારે वो बड़ौदा के जू से की जाती है। इस तरह के कई योजनाओं पर इस जंगल सफारी में काम किया जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और पर्यटकों के आने के बाद एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलेगा। जितनी हरियाली है उससे भी पर्यटक काफ़ी आकर्षित होंगे, और जो रास्ते बनाए गए हैं जैसा कि हम बता रहे हैं कि अलग अलग ऊंचाई पर है। अगर आप
थक जाते हैं तो आप बीच में बैठकर आराम भी कर सकते हैं। और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बीच बीच में स्वयंसेवक जो गाइड हैं वो भी तैनात किए गए हैं ताकि अगर किसी को कहीं भी कोई असुविधा हो इतने बड़े क्षेत्र में तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये इस तरीके के बैटरी चालित वाहन हैं जिन्हें अलग अलग पशु और पक्षी के रंग रूप में ढाला गया है। एक फील दिलाने की कोशिश की गई है पर्यटकों को जो यहाँ पर आए। और इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री Children watching this program live today must be pestering their parents to plan a holiday to Kevadia to experience and savor the sights and sounds of the Statue of Unity and all the wonderful sites that have been developed here. बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री सुझाव भी देते हैं। अभी जब वो वाटरफॉल देख रहे थे वो इस प्राणी उद्यान में बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी वो भी मुआयना कर रहे हैं इस जंगल सफारी का। वो भी बहुत नज़दीक से चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लंबे समय तक इसे इसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए या इससे भी बेहतर स्वरूप में ले जाने के लिए, चूंकि जब पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे तब इसको इस तरीके से मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए एक बेहतर प्रबंधन की ज़रूरत है और इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता है जब आप शुरुआत में ही चीज़ों को देखें, समझें, परखें और उसके बाद उसको और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। This area has been so beautifully designed and landscaped that I'm sure there's very little that needs to be changed. And that itself is an art to landscape a place which and to fit it in with the theme. We can see the water also flowing. Fit it in with the theme of unity, which is visible And a all curious around. denizen of the jungle Yes, indeed. trying to see what's going on. But all the animals seem to be quite at ease. They are not afraid of anything, quite happy in this environment. Especially To the birds. Especially the birds. Yeah, exactly. To create this kind of trust, it needs a lot of effort where the caretakers are concerned that none of these animals seem to be afraid of a closeness to human beings. और इस तरह की जंगल सफारी हो या कोई प्राणी उद्यान यानी जू, जो परस्पर विश्वास की बात है उसमें मनुष्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो काम मनुष्य को ही करना है। और यहाँ ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी। एक विश्वास, एक भरोसा कि यहाँ वो सुरक्षित हैं, यहाँ ये जगह उनके लिए एक बहुत ही बेहतर जगह है। और वाकई जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि यहाँ सब कुछ है, नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ झरना भी है। So And the these success, symbols of peace. yes, actually the success of any of these kind of a zoo like this or any safari like this is that the animals are at in an environment where they are looking active, they are looking vigorous, they don't look like they are troubled in any way, and this is a sign that it is working. It is actually something that is feasible and self-sustaining. When we look at the way the animals look, so it's been designed in a way that they are vigorous and active, because if they are otherwise in any other way, then they are unhappy, and then it tends to move into a regressive atmosphere.
बहुत से पशु पक्षी जिनमें से कुछ को तो आमतौर पर लोग पहचान लेते हैं. And a little friend following the golf cart, hoping to make introductions. एक हिरन लगातार गोल्फ कार्ट के पीछे पीछे. ये अद्भुत दृश्य हैं यहाँ के जंगल सफारी के. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कई लोग कुछ पशु पक्षियों को तो पहचान लेते हैं, तोता, कबूतर वगैरह, लेकिन यहाँ हिरन भी कई तरह के, एंटीलोप श्रेणी के, प्रजाति के, और सारस, बगुले बहुत हैं. उनमें से कईयों के नाम तो जब लोग आएंगे तो बाहर जो पट्टी लगी होती है उसको पढ़कर ही जान पाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है और ये कहाँ का है, कहाँ पाया जाता है. क्योंकि इस जंगल सफारी में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है. और एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव ये बनने वाला है यहाँ आने वाले हर उस पर्यटक के लिए जो इस इलाके में आएगा और इतनी तमाम चीजों के साथ जब पहुंचेगा यहाँ जंगल सफारी में. And also what happens is when you have an environment like this, birds do tend to come in on their own when the seasons change. So this is really a safe place for them to come, and a beautiful duck. So the number of exotic birds, we've seen, in fact, there are cockatoos, pheasants. There is also a black swan. There's a grey parrot. That perhaps was the black swan. Could well have been, yes. What happens is when you see a lot of these animals in pictures, and when you see them like this, it's sometimes difficult to distinguish one from the other. Lessons for most of us who have come here, that we need to spend more time, increase our knowledge, and enjoy this interaction with animals. आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला और ढलती हुई सूरज की रोशनी मध्यम होती हुई, थोड़ी मुलायम होती हुई. कलकालिया झरना, जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत नजदीक से निहारा, किंगफिशर वाटरफॉल के नाम से भी उसे यहाँ पर जंगल सफारी में जाना जाता है. और जो भी पशु पक्षी हैं यहाँ पर, वो बहुत ही आराम से अपने पूरे प्राकृतिक आवास में आनंद लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अभिभावक के रूप में इन सभी चीजों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं. और पशुओं में भी एक कौतूहल सा है. वो ये काफिला देख रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि आज उनके जंगल सफारी में कुछ नए मेहमान आए हैं, तो नए मेहमानों के स्वागत के लिए कहें या उनसे जुड़ने के लिए कहें, एक अजीब सा उनके अंदर कौतूहल है. वो देखने को भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे काफी देर से एक हिरन जिज्ञासावश पीछे पीछे चहलकदमी करते हुए. The deer hasn't lost hope because these are visitors to his home, and he's trying to ensure that they are well looked after and they are welcomed to this wonderful safari where he lives. जगह जगह पर बस स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप थक गए हैं या फिर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप वहां रहें. और जैसा कि हमने कहा कि पशुओं में भी एक कौतूहल सा है. माननीय प्रधानमंत्री का काफिला जंगल सफारी में आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, 375 एकड़ में फैला ये जंगल सफारी, और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय लगता है. और बहुत ही बेहतर ढंग से इसे डिजाइन किया गया है. हमने कई बार कहा कि अलग अलग ऊंचाइयों पर है और इसको इसी ढंग से बनाया गया है कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं और आपको ज्यादा एहसास भी ना हो, और आपको घूमने का,
चीजों को देखने का, समझने का, जानकारियां इकट्ठा करने का पूरा आनंद मिले। So the jungle safari, when it was conceptualized, has kept the natural undulations, the natural topography of the area. We are, after all, in the midst of the hills of the Vindhyachal and Satpura ranges. कि हम आपको बता चुके हैं 2 दिन का उनका दौरा और आज पहला दिन, बहुत व्यस्त कार्यक्रम। और अगले गंतव्य की ओर प्रधानमंत्री का काफिला। लगातार कई परियोजनाओं का लोकार्पण उनके द्वारा किया जा रहा है। केवड़िया का ये पूरा इलाका इस समय गहमा गहमी से भरपूर